হাই, আমি অরিত্র। সৌরভ গাঙ্গুলিকে চিরকালই আমরা দেখেছি ক্রিকেট ফিল্ডে এনার্জেটিক একটা পারফরমেন্স দিয়ে আমাদের এন্টারটেন করতে। কিন্তু এই লকডাউনের সময় তিনি কিভাবে দিন কাটাচ্ছেন তার মেয়ের সঙ্গে নেটফ্লিক্স দেখে, সেটা একমাত্র জানতে পেরেছি থ্যাঙ্কস টু 100 আওয়ার্স 100 স্টার্স। করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিকের সময় ওরা খুব সুন্দর একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়ে এসেছে, টু ডোনেট অ্যাট পিএম কেয়ার ফান্ড। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডোনেট, স্ক্রিনে দেওয়া এই কিউআর কোডটাকে স্ক্যান করুন আর লিঙ্কে ক্লিক করে কন্ট্রিবিউট করুন। থ্যাংক ইউ। So this is 100 Hours, 100 Stars, a non-stop tribute to COVID warriors. My name's RJ Sindhu, and with me I have a man who needs no introduction, but I'm a little tempted to give, grand introduction to him because he is from my town. He is a Chennai person. A man who is a 5-time world chess champion, the man who received the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award for the first time in the country, and also the first sports person in the country to have received the Padma Vibhushan. It's such an honor to be chatting up with you, Grandmaster Padma Vibhushan Vishwanathan Anandavargale. Welcome to this big Digi Mega Fest that we're having. Thank you. It's nice to be here. Such a pleasure to have you. First of all, you are locked up in Germany, away from family. How are you coping up with the COVID situation right now? Well, we are expected to self-isolate, first of all. And in fact, I have been staying home. I basically have 2 friends who live next door, and they're the only people I've seen for weeks. Okay. Besides occasionally seeing someone on the street, and even then I keep a safe distance. I'm staying in a very small town here, so it's much easier to follow these regulations, so you don't need to put in extra effort. Right. ஆரம்பிச்ச போது அவ்வளோன்னு கஷ்டமா படல, ஆனா மெதுவா It's 5 getting வாரம் ஆயாச்சு அது. So now it's getting it's beginning to wear on a bit, but we have to be பொறுமையா இருக்கணும். So absolutely. And பொறுமை patience வந்து உங்ககிட்ட இருந்து கத்துக்கவே வேணாம். So you are, I think, from what I've seen, the epitome of patience, but I'm sure it must be getting to you. Also, what is the routine you've been following for the last 5 weeks now that you're all by yourself? I'm sure you have to get all things done by yourself, run all the errands by yourself. So what is your routine really, sir? Basically, wake up. If I need to do any shopping, I try and finish that. I do this every 3 or 4 days. All right. And I try to get in a bit of exercise. Luckily here, it's social distancing, but not a lockdown. So I'm able to go to the park and so on. And generally, like I've said many times, Germans obey the rules voluntarily, so you don't need very harsh regulation. Right. And then mostly my day revolves around the video calls with family and connecting up with friends and working on chess. All right. So there have been a few online chess tournaments and things like that, which I follow. And so I'm counting the days. I mean, it's been just about 5 weeks since I realized that I was not going to have an early flight back home, and that's how it's been going. So you're doing all the cooking by yourself. Are you somebody who's used to all this, running all the errands and all that? Do you do that back here at home? No, at home I'm spoiled. I don't do it very much, but here it's not too bad. I mean, I tend to have dinner with my friends, and then I basically just have to have a small lunch, which I do. It's not a great spread. So no, I'm not doing a lot of cooking. Right. Are you kind of getting instructions from home on how to cook, what should be the tadka and all of that, how much salt to add? So does that happen on video calls, really? கொஞ்சம் try பண்ணியாச்சு, ஆனா I keep it very simple, just some fruits, cereals,
maybe a sandwich, something very easy. I also don't like to. Also, the more you cook, the more dishes you have to wash. So I just keep it very simple. Okay, so and this is not the first time you are stuck in Germany like this in a situation. It happened back in 2010, if I'm not wrong, when the volcanic, ashes were floating around in the air. So I think that that was not like a big lockdown, like a 5 week and all. That was for a very few days. But you're not new to getting stuck in Germany. The two situations are incomparable. Then basically, the only similarity is that air traffic got shut down in Europe for a while. But I think the air traffic resumed in about a week. So whereas now it's the cause is completely different, but it's 5 weeks, and we don't even know when this is going to end. Right. True. So, but it is a kind of nice coincidence because it almost happened in I think April 16th is when our lockdown started 10 years back, and now again. So it's a kind of a Similar timeline. Yeah, very Right. similar timeline. But that was over in a week, and this one is going on. Yeah, I mean, let's just keep our fingers crossed. But tell us, what do you think should be our next move as a country? You're the king of moves, so if we could hear it from you. I don't know. It simply depends on what the results show. So we have to see how many people are falling sick, what is the status, and also more and more it's becoming clear that we will have to reopen at some point because just to give you an example, people who have other illnesses are not, we can't stop everything only for one thing. So, but the government will have to take the best scientific decision it can, and we'll have to cooperate and hope that, I'm sure mistakes will be made, but that's our best shot. Absolutely. And, talking about that, we have a QR code that's popping up on your screen right now, guys. So if you want to donate generously to the Prime Minister Fund, you can click on that link or simply scan the QR code using your Paytm app and do that. And, sir, நிறைய serious எல்லாம் பேசியாச்சு. So கொஞ்சம் lighter, let's, talk about some things fun. I want to play a game with you, which is called Never Have I Ever. Have you played this game before? No. No, you're never. All right. So I'm going to, throw fun questions at you. You have to just tell me if you have or if you have never done something like that before. All right. So here's the first one. Never have I ever faked an illness in school to just get back home. No, I've never faked an illness at school. I'm once or twice I felt sick enough and I dramatized it at home, but not at school. Not at school. All right. So chamatpayan you are. And never have I ever cried while watching a movie. I think a couple of movies I have cried, so I have done that. You have. And never have I ever used my status as a world #1 chess champion to get things done. That's a tricky one. That's a tricky one because first, almost certainly, if I see that my status is helping me, I don't stop it. But I try my best not to start the ball rolling myself. Okay. But if it started rolling, then I've definitely enjoyed the slight privilege. If I can. That's quite candid. And never have I ever been upset with a fan. Anybody who's really like upset? I've been upset with fans quite often. So you have. Okay. And never have I ever Googled my own name to see what pops up. I have definitely done that. It's not really see what pops up, but sometimes there might be something about you that you need to see. Right. And it's also quite useful to know what other people think of you. So you may think that, I clearly don't need a search engine for myself, but for many others, that may be their only source of information for me. So I need to find out. Right. It's not ego surfing because that backfires.
எப்பவுமே somebody will be attacking you and it will ruin your mood. So I don't do that for ego surfing. Sure. Yeah. All right. And so நீங்க வந்து we all know you are the grandmaster, India's first grandmaster. But உங்க வீட்ல at home who's the grandmaster? You or your wife Aruna? Because I've heard that she can beat you hands down in a game of chess. Is that true? No, that is not true. But she can pretty much do everything else. And even though I think she actually understands chess very well, All right. in the sense that she understands what motivates players, when they're going to have a good day, Okay. and all that, because simply having been around so many chess tournaments, she's very Correct. good. But I think right now the grandmaster is Akhil. So Is it? Okay. So can he yeah, beat you in a he's game of interested in chess, but in general, of course, he's the star. Oh, nice. And talking about Akhil, your son, you missed his birthday, which, if I'm not wrong, was on the 9th of April, right? Correct. Yeah. So how was it not to be around for his birthday? Like, was it? I'm sure it must have been very emotional. Definitely, it was. He was so excited. But in a way, I found it fantastic that he was still so excited about it, that after so many weeks of lockdown, he had not lost his spirit. So that is nice to see. We had a kind of video birthday, but and Aruna had made a cake, and you can see he just plunging into it. It was good fun. Of course, if we had been there, it would have been a bit better, but we did the closest thing we could. I bet. And yes, guys, like Vishy sir, a lot of you are away from family. A lot of you, are spending time away from family. So if you really want to contribute to the Prime Minister's Fund, guys, click on the link that you can see on your video right now and just click to and just say proceed to contribute. When you do that, it'll ask for your details. Just fill in your details and generously donate whatever you can. And sir, I'm sure this whole crisis, the COVID-19 situation, has taught us a lot. What has this situation taught you? What have you learned from it? I have learned. I think that there are a lot of people who are invisible, but without whom you cannot survive, and you see it now clearly. நம்மலாம் வீட்டில் உட்காந்து லாக்டவுன் சொல்லலாம், பட் 10 பேர் வெளில இருக்காங்க, அவங்களால தான் we are able to lock down, and you have a new appreciation. Of course, first and foremost, in a illness, you have to thank the nurses and doctors. But on top of that, the people who grow our food, the people who clean the streets, the things we take for granted, and you realize that those people are out there risking a lot. Right. So, especially for them, please donate. And, any way we can say thanks to them is good. Absolutely. And if there's one message that you want to give out to the citizens of the country far away from Germany, what would it be, sir? Just try to stay as cheerful as possible, and பொறுமையா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பொறுமையா இருக்கணும். இப்போ விடுறதுல பிரயோஜனம் இல்லை, இவ்வளவு நாள் செஞ்சாச்சு, இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பொறுமையா மூச்சு பிடிச்சுன்னு எப்படியாவது இதுக்கு ஏதாவது முடிவு வர வரைக்கும் காத்துட்டு தான் இருக்கணும். Yes, we'll have to wait, and I hope things get back to normalcy real soon. I hope you catch the first flight and fly back down to India to meet your family. Sir, I just hope the best for you. Thank you so much. Thank you for giving us your time, and it was lovely chatting up with you. Thank you. Thank you. This is 100 Hours, 100 Stars, a non-stop tribute to the COVID warriors. Our little way of saying thank you. You guys too could be a part of this. Just click on the link that you can see here on your screen and say proceed to contribute, where you can simply fill in the details and type in the amount that you want to contribute to the Prime Minister's Fund. Let's all be together in this, and let's fight COVID-19.
माय गॉड, लुक एट दिस। दुनिया जहां का सबसे खूबसूरत मंजर मेरे सामने है। पीछे हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा और सामने हिंदुस्तान की शान आशा भोसले जी हमारे साथ में। आशा जी, थैंक यू सो मच। हाँ, मिला रहे हो मेरे को हमारे झंडे से। कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन तुम प्यार करते हो इसलिए बोलते हो। नहीं, सही में ये मंजर इतना अनमोल है कि मैं इसको लगातार कई मिनट तक देख सकता हूँ। आशा जी, मेरे लिए ये इस वक्त जो हम बातचीत कर रहे हैं, हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह से हम ये बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए बड़ा स्पेशल बन जाता है ये, क्योंकि मैंने और आपने बहुत सारे रेडियो पे इंटरव्यूज किए हैं, हमने दुनिया जहां में बहुत सारे कॉन्सर्ट साथ में किए हैं, लेकिन वीडियो पे ये एक तरह से हमारा और आपका पहली बार है। तो मेरे लिए ये बहुत स्पेशल बन जाता है कि आरजे अनमोल और आशा जी एक साथ ऑन वीडियो चैट। मजा आ गया। पूछो क्या पूछना है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि लॉकडाउन के इस वक्त में आप कहाँ पे हैं? हाँ, देखो 4 तारीख को मेरे बच्चे आए थे, मतलब पोता पोती बाहर से, फिर लड़का भी आया था मेरा, और हम लोग घूमने के लिए 4-8 दिन के लिए हमारे मतलब बम्बई से थोड़ी दूर पे बंगला है, उसमें चले गए हम लोग, और वहाँ लॉकडाउन हो गया। फिर वो निकल ही नहीं सकते हैं, तो और बड़े बड़ी मुश्किल में, मतलब दिन है कि अंदर ही बैठना पड़ता है, और सामान उतना नहीं है, कपड़े वपड़े वगैरह सब चीज़ 8 दिन की थी, तो फिर वैसे रह रहे हैं, और महीना हो गया हम वैसे रह रहे हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि जो लड़का दुबई में ज़्यादातर अपने बिजनेस के लिए रहता है, बच्चे स्कूल में जाते हैं दोनों, मतलब पोता पोती जिनवा में, तो इस बार 1 महीना साथ में हैं हम लोग। ये बहुत सुंदर चीज है, क्योंकि मेरी पोती है, वो काफी मस्तीखोर है, वो क्या फुटबॉल खेलती है, पता नहीं क्या क्या करती है, वो हमको भी नचाती है। वाह, क्या बात। जितने भी लोग इस वक्त हमारी इस बातचीत को देख रहे हैं, आपको बता दें कि मैं और आशा जी जो इस वक्त बात कर रहे हैं, हमारा जो ये सबसे बड़ा डिजिटल फेस्ट हमने बनाया है 100 आवर्स 100 स्टार्स, इसमें बहुत बड़ी वजह है कि हम कोविड वॉरियर्स को सलाम कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो फंड तैयार किए हैं, पीएम केयर्स, आप नीचे देखें, इसमें एक लिंक है, या फिर आप क्यूआर कोड जो है स्कैन कीजिए और जितना हो सकता है डोनेट कीजिए इस बातचीत के दौरान। आशा जी, ये बताइए आपकी तो डोनेट कर भी दिया है आपने मुझे बताया था। लेकिन एक बात है कि डोनेट जब करना चाहिए तो राइट हैंड को पता होना चाहिए, लेफ्ट हैंड को नहीं पता होना चाहिए, पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए अपने इसकी। तो इसलिए मैंने किया है, कितना क्या कुछ किया वो मुझे ही मालूम है। अच्छा, नहीं, ठीक है, ठीक है। नहीं, आशा ताई, ये बताइए, आपने कहा कि अभी 1 महीने से भी करीब करीब ऊपर हो गया है, बंबई से बाहर सबके सब परिवार एक साथ है, क्या क्या ऐसा है जो आप कर रहे हैं? आप ये वक्त कैसे बिता रहे हैं? क्या क्या नई नई चीजें कर रहे हैं? ये हमारे साथ बताइए। सुबह 7 बजे उठती हूँ मैं, और सुबह 7 बजे उठने के बाद मैं किसी को उठाती नहीं, मैं अपना चाय बना के पीती हूँ, बिस्किट वगैरह खाती हूँ, फिर उसके बाद जाके मैं रियाज के लिए बैठती हूँ। अब मैं रियाज करती हूँ, जितना हो सकता है इतना रियाज करती हूँ, फिर आके किचन में देखती हूँ कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, तो वो सब चीजें अपने घर की, तो तुम्हें तो मालूम ही है मेरे को काम की आदत है जी। तो कुएं का पानी भी खींचो तो मैं खींचा है मैंने, कुछ काम में मैं कर सकती हूँ, तो ऐसा कुछ वो नहीं लगता है मुझे। लगता है और लोगों के लिए दुख लगता है कि जिनको काम की आदत नहीं, ऑफिस में जाने वाली औरतें, उनको खाना बनाना पड़ता होगा, बर्तन मांजने पड़ते होंगे, तो उनके लिए मुझे थोड़ा दुख होता है। आप टाइम बिताने के लिए, क्योंकि पूरा परिवार साथ में है, तो क्या कैरम खेलते हैं, खाना बनाते हैं, क्या करते हैं? ताश भी खेलते हैं और सांप सीढ़ी भी खेलते हैं। तो क्या है, कुछ भी करते रहते हैं। और टीवी तो हमारा बहुत बड़ा सहारा है कि दुनिया की खबरें हम सुनते हैं और सब। जी। आशा जी, मैं हमेशा इस बात को सोचता हूँ, खासतौर पे जब हम कॉन्सर्ट्स करने के लिए जाते हैं और आप स्टेज पे गा रही होती हैं, भगवान की दुआ से यू आर 87 फाइटिंग फिट डूइंग कॉन्सर्ट्स पूरे दुनिया जहां में, हाउसफुल कॉन्सर्ट, टच वुड फॉर दैट।
आपने इतनी बड़ी जिंदगानी, इतनी दुनिया देखी है आपने, आजादी से लेके वर्ल्ड वॉर से लेके न जाने क्या क्या। ऐसा वक्त कभी पहले देखा है आपने? ऐसे पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन मैं अब छोटी थी, मेरा 33 का जन्म है, और मैं छोटी सी थी जब माता आती थी, प्लेग होता था, कॉलरा होता था, और इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड वगैरह सब चीज़ें चली रही थी, लेकिन हम लोग उसमें से बराबर निकल आए। हाँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखी, रन गाड़े चलते हुए मैंने पूना की सड़कों पे देखे हैं, रन गाड़े देखे हुए। और अच्छा। हाँ, कोल्हापुर में तो पोलैंड की औरतें लाके एक कैंप बना हुआ था, उनमें सिर्फ पोलैंड की औरतें थी, गोरी गोरी। तो हम लोगों को बहुत मज़ा आता था कि कितनी गोरी औरतें हैं, और ऐसे सब देखा है। फिर उसके बाद पाकिस्तान की वॉर भी देखी है, 47 का अपनी आज़ादी भी देखी है, बाप रे। और ये जो कोयना का जो डैम है वो टूटा था, उसमें बहुत पुणे बॉम्बे का बहुत नुकसान हुआ था, वो भी देखा। 15 दिन तक बॉम्बे में लाइट नहीं थी, पानी नहीं, कहीं से लाते थे लोग, ऐसे करके दिन निकाले हैं। पाकिस्तान के वॉर में भी लाइट 15 दिन तक, मतलब काले कागज लगा के ग्लास को अंधेरा कर देना, ये सब चीजें देखी है हमने। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा कि पूरी दुनिया बंद है। बाप रे। ये हिंदुस्तान में होता था या 2 राष्ट्र में होता था, अब तो बिल्कुल ही पूरी दुनिया इसमें अटकी हुई है। और ये समझ नहीं आती है मुझे कि भगवान ने क्या, भगवान का कोप हुआ है, कुछ मालूम नहीं है, लेकिन इसमें से में हम पार पड़ेंगे, पार क्या होंगे। बात, वाह क्या बात है। कोरोना से डरो ना, इससे डरना नहीं है, इससे डट के हमें सामना करना है। इसको सावधानी से चलना है, सावधानी से चलो तो बहुत अच्छा होता है। तो घर में अगर बैठे हो तो हंस के भी जीना होता है और रो के भी जीना होता है, जीना तो पड़ता ही है। तो ना मिला करो उदास चेहरों से, ना मिला करो उदास चेहरों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं। तो देखना नहीं चाहिए, हंसते हुए देखना चाहिए सबको। मेरा ये है कि, और ये भी वक्त निकल जाएगा, सब सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। आशा ही करती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। वाह क्या बात है कि मैं ये आशा करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने बहुत अच्छी बात कही कि ना मिला करो उदास चेहरों से, जो हंसते हुए चेहरे हैं उनसे मिलो, पॉजिटिविटी लेकर आओ, दुनिया में बहुत जरूरी है। हाँ, उदास नहीं होना चाहिए, और दुख की बातें नहीं करनी चाहिए। और हम क्या करते हैं ना, हम उदासी से दूर रहने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे घर में हम सुबह होती है, हम आपके गाने लगा देते हैं, साथ में गाते रहते हैं, एक अलग ही वाइब्रेशन आ जाती है। आशा जी, आप किन्हें सुनती हैं? म्यूजिक की अगर हम बात करें तो आशा भोसले किन्हें सुनती हैं? मैं अभी यहाँ पर तो मतलब सुनना नहीं, बहुत पहले मैं ज्यादातर गजलें सुनती हूँ, गजलें सुनती हूँ, क्लासिकल भी सुनती हूँ, लाइट क्लासिकल भी सुनती हूँ। फिल्मी म्यूजिक इतना ज्यादा नहीं सुनती हूँ, क्योंकि हमने गाया है, हमारे सामने सबने गाया है, तो बहुत वो तो जो गाने की चीज होती है वैसे अच्छा लगता है। एक शेर याद आया मेरे को, बहुत अच्छा शेर है, सुनो तुम, के शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है, जब रात की तन्हाई, जब रात की तन्हाई दिल बन के धड़कती है, यादों के दरीचे में चिलमन सी सड़कती है,
जब रात की तन्हा, ऐसे बगाती रहती हूँ, पता लेती क्या रहती बात है, हूँ। ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड, सीरियसली क्या बात है। ये गुलाम अली साहब ना? नहीं, ये हाँ, हरिहरन का गाना है। हरिहरन जी का, अच्छा 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 अच्छा, वाह वाह वाह, क्या बात है। म्यूजिक की हमने कुछ बातें यहाँ पे की हैं। मैं कुछ और थोड़ा म्यूजिक से भी और थोड़ा पीछे जाता हूँ, थोड़ा गाना और थोड़ा खाना। आपके बचपन में आपको लेके जाता हूँ मैं। कुछ दिन पहले आपने ट्वीट किया था पिताजी के बारे में, बताया था कि आप घर में सबकी बड़ी फेवरेट थी माताजी पिताजी की। माताजी पिताजी की क्या क्या यादें हैं बचपन की, वो क्या खुशबू है, कुछ बातें बताइए। सबसे बड़ी बात ये थी कि 5 हम भाई बहन, लेकिन मेरे को सब में बुद्धू कहा जाता था। 5 में मैं बुद्धू थी, क्या? इसलिए मेरा नाम पठान, पहलवान, हब, इसी नाम से मुझे बुलाया करते थे। पिताजी कहते थे पठान इधर आओ तो माँ आई बोलती कांट गेट ओवर दिस, क्या बात करा। दिस इज अमेजिंग, आशा जी को पठान कह के बुलाते थे, अच्छा। थी मोटी थी, ताकतवर, जरा बचपन से ही जरा काम वाम हाँ करते थे, तो हाँ माँ बुलाती थी कि पठान तो अपने भाई को नीचे रख। मेरा हाँ, भाई मेरे गोद में होता था। भाई को हम्म, नीचे रख और यहाँ आके मेरी मदद कर। तो वहां हम्म, जाके सिलबट्टे पे उसने मेरे को पूरन निकाल के देना था और मैं पिसती रहती थी, कुटती रहती थी, सब काम घर के करती थी। अरे बाप रे। ऐसा ही बचपन से ही काम करने का जो होता है वो हम्म, वो हो गया। और उस वक्त से खाने का जो शौक है, बनाने का, हम्म, खिलाने का, वो शौक वहीं से पैदा हुआ है। वहीं वाह, क्या बात है। की मदद करना, क्यों बहनों की मदद करना, सब चीज़ों की मैं मदद किया करती थी हमेशा सबको। तो वो मेरा नेचर बन गया और वही उसी से मैं अच्छी कुक, सब बोलते हैं अच्छी कुक हूँ, मुझे मालूम हम्म। नहीं। हमने तो खाया है आशा जी के हाथ का मटन, खाया है, उंगलियां चाटते रह गए हम तो। बट पिताजी के बारे में कुछ बताइए, क्या माहौल रहता होगा उनके? तो गले में सरस्वती माँ का वास था, वो जब पिता रियाज करते थे तो घर में क्या रहता था? पिताजी जब मैं जब छोटी थी, हाँ, तो पिताजी जब आते थे घर में, तो हम लोग हम्म, जैसे चिड़ चुप हो जाते थे। जैसे पिताजी कुछ नहीं कहते थे। पिताजी की आंखें बड़ी बड़ी थी, वो अगर उन्होंने अच्छा, आंखें बड़ी करके देखा तो हम लोग हाँ, कांपते थे, सब लोग, दीदी अच्छा, से लेके सब लोग। लेकिन हम्म, फिर वो बैठते के बोलते थे चलो अभी शाम हो गई है, गाना गाने बैठो, गाना हाँ, गाने बैठो। तो हम्म, वो चीज, वो घूमते रहते थे धोती पहन के, जो पुराने लोग होते थे तो वैसे हाँ वो हाँ, रहते थे और वो गाना सिखाते थे। तो गाने के, वाह हाँ, तो सब लोग हम मिल के गाते थे। और वाह, हाँ, ये आप जैसे बता रही है मेरी आंखों के सामने पूरा मंजर चल रहा है, धोती में पिताजी टहलते हुए, आप लता जी सब बैठे हुए, मीना ताई गाते हुए, वाह क्या बात है। तो जैसे पिताजी आपको बोलते थे कि चलो शाम हो गई अब रियाज करो, ऐसे आप जनाई को बोलती हैं? क्योंकि वो भी गाती है, हमारे साथ कॉन्सर्ट में भी परफॉर्म किया है। मैं जनाई बोल, है आसपास, है जनाई? वो क्या था ना, वो वक्त ऐसा था कि घर हम्म, में गाना बजाना, तानपुरे सब बजते ही रहते थे पूरा दिन। शाम हम्म, को ड्रामा होता था ये। अभी ये हम्म, जो नई जनरेशन है, इनके पास हम्म, बहुत काम है, बहुत अच्छा, काम। इंग्लिश म्यूजिक है, स्पेनिश म्यूजिक है, और इनके पास पढ़ाई बहुत है। तो हम्म, इन लोगों को मतलब बिठाना बड़ा हम्म, ये, लेकिन वो बैठती है। ये अच्छा, आजकल ऐसे होते हैं, वो बैठती है मेरे साथ और मुझे हम्म, कहती है कि मैं तेरे जैसा तो नहीं गाऊंगी, लेकिन मेरे को तो हरकतें बता। तो मैं उसको सिखाती हूँ तो फट से अच्छा, पकड़ लेती है। तो मैं अच्छा, कहती हूँ देखा, तूने गाया ना, ऐसा बराबर है ना तुम्हारा, ऐसा ऐसे करके हाँ, मैं बताती हूँ उसको। तो वो वाह। आजकल यहाँ पर महीना भर से मेरे पास बैठ रही है। तो बुलाओ ना, महफिल को और बढ़ाते हैं, बहुत मजा आएगा। जो इस वक्त हमको देख रहे हैं, प्लीज हमारी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि जब आप ये बातचीत का मजा ले रहे हैं, द लेजेंडरी आशा भोसले जी से हमारी बातें हो रही हैं, तो ये मत भूलिएगा कि इस बातचीत का बहुत बड़ा मकसद है। डोनेट कीजिए प्लीज। आजादी के वक्त भी ऐसे ही हुआ था कि लोगों ने इकट्ठे होकर पैसे दिए थे ताकि आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ा सके। आज कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई है,
पीएम केयर्स जो फंड हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, नीचे आप देख सकते हैं एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, मैंने तो अपने बोला अमाउंट भरिए और प्लीज भेजिए मैंने तो डोनेशन। जी बोला आशा जी बिल्कुल। कि एक हाँ हाँ तुम बोलो। हाँ, नहीं नहीं, क्या क्या आशा जी क्या बोल रहे थे आप? एक क्या? मैंने बोला है उनके लिए कि जो हमारे जो जितनी आबादी है वो अगर 100 रुपए दे तो भी 13,000 करोड़ वाह 13,000 करोड़ हमको मिल सकते हैं सिर्फ वाह 100 रुपए देने से। तो वाह। मेरा ख्याल है लोगों ने काफी दिया है। हम्म, मुझे बता रहे थे कि कोई बिल्कुल दे रहे हैं और बिल्कुल देते रहिए ऐसे ही। ऐसे पीएम ही केयर्स करना चाहिए ये लोग। फंड है, बिल्कुल सबके, जैसे आशीष जी ने कहा, हर कोई 100 रुपया भी अगर दे तो पूरी आबादी दे तो 13,000 करोड़ बन जाएगा, आपने कहा है ना आशीष जी? वाह क्या बात है, सुपर। आशा दाई बुला लो ना, जनाई को भी महफिल में बुला लो, मजा आएगा। सगाई को बुलाने से पहले मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुमसे नहीं सब लोगों से कहती हूँ जी जी कि जी। ये वक्त है कि संभल के रहिए, घर में रहिए, मुंह हाथ सब साफ रखिए जी। और लोगों से मत मिलिए, थोड़ा दूरी पे मिलिए और हम्म, अपने आप को संभालिए, दूसरों को भी संभालिए। क्या बात है। दूसरों को भी नहीं लगना चाहिए, खुद को भी नहीं लगना चाहिए। इस तरह आप चलिए। और मेरा ख्याल है कि हमारे जो हिंदुस्तानी भाई हैं वो लोग बहुत सुनते हैं पंत प्रधान जी की, जी और उन्होंने सब ऐसा ही किया है जैसे पंत प्रधान जी ने कहा है। तो जी। मुझे लगता है कि हमको यश जरूर मिलेगा, वाह जरूर मिलेगा। क्या आज बात है। आज जाना ही कब। Oh, super. Yeah, there we have Zanai. What's up? How are you? I'm good. What's up? All good. Tell me. मालूम नहीं ये सुंदर है ना, मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ। Oh, come on, आशा ताई। जनाई जवाब देगी ताई को इस बात का। I mean, खून तो उनका ही है, तो obviously. Yeah! कितना खूबसूरत प्रेम है, एक तरफ हमारी लेजेंडरी आशा भोसले जी और उसी तरफ बाजू में उनकी ग्रैंड डॉटर जनाई भोसले। हे जनाई, कांग्रेचुलेशंस, जो लेटेस्ट गाना गाया आई, जनाई का 2 लाख व्यूज से ऊपर पहुंच गए वो, बहुत सुंदर है। है ना? Thank you. Glad. और ऐसे वक्त पे आया है ये गाना। एक बार सबको बताओ ना कि गाना क्या है, और उसकी 2 लाइन गा के बताओ तो सबको मालूम चलेगा जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। ये गाना इसमें बहुत डिवोशन की बात है, और अभी हम इस बुरे वक्त में, कोरोना वायरस के वक्त में है, तो सोचा कि अभी रिलीज कर देती हूँ, सही क्योंकि बात है। इस गाना में आशा है। आशा हम्म, hopeful, and I encourage people to stay home, listen to songs, be with their family. And you want me to sing? I can sing 2 lines. yes, of course. Let's do it. Um, चंदा की चांदनी में, सूरज की रोशनी में, सागर की एक लहर में, हर मुकाम और हर डगर में एक तेरा ही एहसास है, Wow. एक तेरा ही एहसास है, जैसे तू मेरे पास है, जैसे तू मेरे पास है। Wow. How beautiful. How beautiful. Happy to be home with my grandmom. और कितनी खूबसूरत बात है ये, किसी के लिए भी गाया जा सकता है कि इन सब चीजों में तेरा एहसास है। आप अपनी ग्रैंड मॉम के लिए गा सकते हैं, आप भगवान के लिए गा सकते हैं, अपने दोस्त के लिए गा सकते हैं, जिससे प्यार करते हैं उनके लिए गा सकते हैं। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। तो जनाई जनाई को इतना वक्त मिल रहा है अभी आशा जी के साथ में, क्या क्या किया, क्या क्या कुछ सीखा, कुछ खाने का सीखा, या सिर्फ खाया जो उन्होंने बनाया? नहीं, खाया ही ज्यादा से ज्यादा, क्या लेकिन क्या खाया है तो बताओ, मस्त मस्त जो बनाया है आशा जी ने। नहीं, वो इंग्लिश चीजें बनाती है, इटालियन बनाती है, कभी अच्छा। कुछ बनाती है, कभी कुछ पास्ता पुस्ता क्या क्या कुछ लेकिन घर बनाती का है। खाना वो ही बनाती है। ओके, सुपर। जनाए, आज हम सब जो इकट्ठे हुए हैं ना एक साथ में, उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि हम हमारे जो कोविड वॉरियर्स हैं उनको एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक फंड बनाया है पीएम केयर्स, हम उसके लिए डोनेशन इकट्ठे कर रहे हैं।
तो इस वक्त जितने भी लोग हमको देख रहे हैं हमारी इस बातचीत को, मैं कहूंगा आइकॉनिक बातचीत को जो देख रहे हैं, नीचे एक लिंक है, उस लिंक पे वो क्लिक कर सकते हैं, अपने डोनेशंस भेज सकते हैं। एक QR कोड है, उसको स्कैन करके भेज सकते हैं, अपने डिटेल्स भरिए, अपना अमाउंट भरिए और भेजिए। आशा जी ने बहुत खूबसूरत बात कही कि इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, हर कोई अगर 100 रुपया भी दे तो ये बहुत बड़ा पहाड़ जैसा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। जना, एक चीज हम तुम्हारे साथ में, यू मस्ट हैव सीन द लेटेस्ट टिकटॉक हैंड चैलेंज। Oh आर यू my. अप फॉर इट? Let's do the hand challenge right now. Yeah. And Asha ji, if you are game for it, you also join us. कुछ हाँ. नहीं है, तो बेसिकली एक कुछ हाथ के जेस्चर्स हैं जो कि एक ट्यून के ऊपर हमको करने हैं। ओके, हम आपको करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आशा जी आप कैसा करते हैं। ओके, डन? ओके, रेडी? सुपर सुपर सुपर। अच्छा, ऐसा करते हैं, ये बहुत बड़ा, ये बहुत जबरदस्त, या ये बहुत जबरदस्त मोमेंट रहेगा कि जनाए यानी कि आशा जी आपकी ग्रैंड डॉटर आपके सामने, वो पूरे जितने भी लोग देख रहे हैं उनके सामने आपका एक गाना गाएं। हो जाए हो जाए हो जाए, इसमें आएगा मजा। और तुमसे बातें कर रहे हैं और पसीने आ रहे हैं। पसीने आ रहे हैं, हाँ, धूप में देख रहा हूँ, सीधा धूप आपके ऊपर है एकदम बिल्कुल। हाँ, जना बताओ कौन सा गाओगे आप? तो है नहीं, लाइटिंग भी नहीं है, मेकअप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे नहीं नहीं, एकदम चमक रहे हो आप। चांद को रोशनी की किसी और की क्या जरूरत है? कम ऑन, गा काय गाणं? तुझे माझं choice? यस। La 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 la। तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। हो मिल जाए इस तरह तो लहरे जिस तरह, हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर होना जुदा है वादा रहा। वादा रहा। ये बजा ही नहीं इसने, ये मैंने कभी लाइफ में बजा नहीं पाई। क्या बात। वो पब्लिक ही बजाती थी जब मैं गाती थी। हाँ, आज भी जब कभी कॉन्सर्ट होता है और आप गाते हैं तो पूरी पब्लिक ही बजा रही होती है वो ताली। क्या जबरदस्त है, जबरदस्त होती है। है ही नहीं तो। जनाए, एक बात पूछनी थी, दैट सी व्हेन यू वर बोर्न एंड व्हेन यू सॉ आशा जी, वो आपकी ग्रैंड मॉम थी, है ना? बचपन से जब बड़े हुए तो वो तो आपकी ग्रैंड मॉम है। आप मुझे ये बताओ, ये आपको पहली बार ये रियलाइजेशन कब हुआ कि मेरी ग्रैंड मॉम तो है, लेकिन साथ ही साथ इस दुनिया की बहुत बड़ी लेजेंड भी है? ये पहली बार रियलाइजेशन कब हुआ? Tough question. बताओ बताओ। वो तो उनको अभी भी मालूम नहीं है। बच्चों को तो आप यकीन मानो अनमोल, मेरा का आनंद हाँ, और वर्षा, ये दोनों जो थे, तीनों उनको ये पता ही नहीं था कि हमारी माँ गाती है। क्या बात कर रहे हो? क्या करती है, गाती। मैं कभी स्टूडियो नहीं ले जाती थी, और ये अच्छा। कभी रेडियो सुनने वाले थे नहीं। हाँ। ये जो होते हैं ना नई पैदाइश ऐसे होती, तो इनको पता ही नहीं था कि मैं गाना गाती हूँ। अरे कि बड़ी दीदी गाना गाती है बस, हमारे अच्छा। पता नहीं कहाँ जाते हैं। This is too funny. जनाए बोलो ना। I think I realized somewhere when I was 6 years old, because I came home one day from school and suddenly I see like photographers everywhere and flowers, and I'm just like, what is happening, you know? And I was just like, okay, like my grandmom, I looked her up on YouTube and I was like, you know what?
My Yeah. grandmom is pretty famous. I don't think it ever changed anything for me. Yeah. And then my other moment of realization was we were in Wembley. It, Mm. this was like I was much older then, Yeah. but just it brought tears to my eyes, and I saw like this crowd of I don't know how many thousand people, Yeah. and the uproar that she got when she entered, Oh. it was insane. Like I had never seen something like this in my life. Even now, when I think about it, I get like I get goosebumps. well, That those moments get goosebumps, I something swear. you just can't get. And at this age of 86, 85, she enters stage and gets this. I'm 87 अभी चल रहा 87. चल रहा है. I knew that was coming. But है. Zanai, tell me something. Between you and me, see, I don't know how much, but I know quite a lot of Indian music. Okay, you are based in Europe. You're studying there. You must have explored a lot of Western music. So collectively, between you and me, tell me something between our knowledge, your knowledge and my knowledge about music combined. yeah. Do you know of any artist across the world? India, I don't know. I know there is nobody else. Any artist across the world who at 87 is performing on stage live and doing concerts, 50,000 people, 1 lakh people going houseful. Do you know of any other artist? No. Even Even I if don't. I rack my brain, I don't know anyone. I know only Asha ji. Yeah, same. Yeah! सुपर. तो आज जैसे कि हमारी ये जो बातचीत हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज के लिए हो रही है. हम चाहेंगे जो भी लोग हमारी ये बातचीत देख रहे हैं बिल्कुल एक्सक्लूसिव बातचीत वो प्लीज डोनेट कीजिए. आशा जी देखिए बम्बई के बाहर बैठी हुई हैं अपने एक बंगले पे जहां पर वहां से बैठ के हमसे कनेक्ट हो रही हैं. धूप उनके बिल्कुल चेहरे पे पड़ रही है. मैं यहाँ से पैसे भी भेजे मैंने. हाँ आपने डोनेट भी किया. यस मुझे पता है. Yes. And the other thing is, I don't know if I mentioned this, but just today I've launched a YouTube channel and I want to talk about how we should donate to PM Cares Fund. Like I want to use it as a medium to get to people and get it out there that you should donate, and it's very important at this stage. So that's another reason why I've created a channel right now. So What's the channel called? listen on that and listen that we really should work as a country together. हमें एक साथ होके एकजुट होके इस कोरोना वायरस को भगाना है. बिल्कुल. अरे भगा देंगे इसको हम. दुम दबा के भागेगा ये कोरोना वायरस. What's the name of your channel, Zanai? It's Zanai Bhosle only, but it's just videos about how we're spending time in quarantine, and I'm also going to use it as a medium to help this cause. वाओ सुपर. नीचे QR कोड है, स्कैन कीजिए या फिर जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, अपने डिटेल्स भरिए, अमाउंट भरिए और डोनेट कीजिए क्योंकि ये सब कुछ जा रहा है टू द PM केयर्स, वो फंड जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाया है. वहां पर ये धनराशि जो है वो पहुंचेगी टू हेल्प आवर कोविड वॉरियर्स बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर पेइंग अ ट्रिब्यूट टू आवर कोविड वॉरियर्स. 100 hours, 100 stars, and I think the biggest star which we have, आशा भोसले जी हमारे साथ में है. आशा जी बिफोर आई से बाय टू यू आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैं बहुत जल रही हूँ क्योंकि तुम घर में बैठे हो बहुत अच्छे ठंडे और हमको धूप में बिठा के सबको धूप में बिठाया हुआ है. हाँ धूप में बिठा के. अब जाने से पहले मैं तुमको एक ही गीता का श्लोक बोलना चाहती हूँ. ठीक है. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. वाह. में जन्म लेते हैं भगवान और अब आने वाले हैं या आए हैं, जरूर आए हैं और इस संकट से हमें वही बचाएंगे, वही बचा रहे हैं. वाह क्या बात है. मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ आशा जी आप हिंदुस्तान की आन बान शान है. आप हमारे साथ में जुड़ी. आप मैं कहता हूँ सबसे खूबसूरत एक इमोशन है जो हमारे दिलों में रहती हैं. जितने हिंदुस्तानी दुनिया जहां में उनके दिलों में रहती हैं और आपकी बात तभी सबको बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आएगी, सटीक लगेगी और हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे. नमस्कार सब लोगों को, मेरा नमस्कार, तेरे को प्यार और सब लोगों को मैं जितने देखने वाले हैं
वो अपना ज़रा सा हाथ खुला करें। अभी कहीं पर जाना नहीं है, पिक्चर देखना नहीं है, साड़ियाँ नहीं लेनी है, कहीं कुछ लेना नहीं है, 100 रुपये, सिर्फ 100 रुपये निकाल लीजिएगा और मेरे लिए, अपने वाह। देश के लिए आप दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा। क्या बात है, क्या बात है। जनाए वो भी देगी। जनाए भी देगी। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। Presenting Fever Network. The power of three. Number one station in Delhi, Mumbai, Bangalore, and Kolkata. Fever FM, the bop of Bollywood. Congratulations to all of you for being the number one radio station. The biggest CSR initiative on radio. Pioneers of radio drama in the industry. Biggest sports tie-ups. Official radio partners of 5 winning IPL teams. Most entertaining shows and RJs. Radio Nasha, India's coolest retro station. 107.2 Radio Nasha. Nasha, 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 Nasha. गाने का नशा, गुनगुनाने का नशा, सुनने का नशा, सुना। Celeb RJs. Best of retro. Shows and RJs that take you back in time. Radio 1, India's only international network. The only radio station Katy Perry vibed with. We were there when U2 performed for the first time in India. Global teen sensation Justin Bieber jams with Radio 1. Truly global shows and RJs. Megamix.
America's Top 40, the Mahindra Blues Show, and more. किताबों से क्लिक तक, किताब आपको समझ में आ गया, क्लिक नहीं आया, वो अंत में समझ में आएगा। तो आइए ज़रा शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि जी, किताबों के जानबूझकर गिराने से उठाने तक पहले एक रिश्ता बना करता था। किताबों में उसके दिए हुए फूल मिला करते थे जो सूख जाते थे पर कभी उस किताब से बाहर नहीं आया करते थे। कुछ किताबों पर कुछ लोग अपना इश्क जाहिर किया करते थे। खैर, जो राब्ता पहले किताबों से था वो शायद अब गुजर गया है। पन्ने पलटने का जुबां पर जायका भी अब नहीं आया करता है, क्योंकि जनाब अब तो किताबों का नहीं, क्लिक का ज़माना आ गया है। यही है कि डॉक्टर के पास जाइए। तुरंत कॉल कीजिए स्टेट हेल्पलाइन नंबर 0202612739 या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के 24/7 हेल्पलाइन 1075 पर या 1-800-112-545। छोटी छोटी बातों का रखिए ध्यान और दूर ही रखिए बेतुके ज्ञान। प्यारी बातें मुझे अच्छी लगती है, लेकिन यूं खुले में छींकना किसी को अच्छा नहीं लगता है। छींकते और खांसते वक्त अपना मुंह और नाक टिश्यू या रुमाल से ढकिए। टिश्यूज के इस्तेमाल के बाद बिना भूले उन्हें ढके हुए डस्टबिन में जरूर डालिए। छोटी छोटी बातों का रखिए ध्यान और दूर ही रखिए बेतुके ज्ञान। इसीलिए तो रेडियो नशा कहता है, करो ना वरी, स्टे हैप्पी और हाँ, स्टे सेफ मुंबई। फीवर वॉइस ऑफ चेंज की शुरुआत करते हुए रेडियो पर जॉन इब्राहिम, गौतम गंभीर और वरुण धवन ने मिलकर ये कहा। हाय, मैं हूँ गौतम गंभीर। हाय, मैं हूँ वरुण धवन। हाय, मैं हूँ जॉन इब्राहिम। फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ मैं कहता हूँ, बकवास बंद, बदलाव शुरू। फीवर वॉइस ऑफ चेंज का सबसे पहला इनिशिएटिव था नो MC, नो BC। मैं जॉन इब्राहिम कहता हूँ, मैं वरुण धवन भी ये वादा करता हूँ, हम अपनी शहर की औरतों को जुबान से इज्जत देंगे, यानी नो MC, नो BC। उसके बाद मिशन तेजाब में कई एसिड अटैक विक्टिम्स की जिंदगी का रुख बदल दिया। हाय, मैं हूँ आमिर खान और फीवर वॉइस ऑफ चेंज एसिड अटैक विक्टिम्स को एक नई जिंदगी दे रहा है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। मिशन जुर्रत में देश के सारे पुलिस डिपार्टमेंट्स को एक साथ मिलकर कहा। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता और मुंबई पुलिस को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाह रहा हूँ। आप फीवर 104 FM मिशन जुर्रत का हिस्सा बने। ये बदलाव की बहुत बड़ी शुरुआत है और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। जब कश्मीर में फ्लड्स आए, लाखों की तादाद में खाने पीने की सामग्री कश्मीर भिजवाई। हमारी इस कोशिश के लिए मिशन कश्मीर ने जीता गोवा फेस्ट में प्रेस्टिजियस एबी अवार्ड। मैं और आप मिलकर फीवर वॉइस ऑफ चेंज का अगला प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, ब्लड बैंक 104। ब्लड बैंक 104। फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ मैं जॉन इब्राहिम ये वादा करता हूँ कि इस शहर में जब भी होगी खून की दरकार, तैयार रहेगा फीवर 104। और फिर ट्रैफिक जैम की वजह से नहीं जाए कोई जान, उसके लिए हमने शुरू की अपनी मुहिम एम्बुलेंस फर्स्ट। हाय, मैं हूँ जॉन इब्राहिम। हाय, मैं हूँ गौतम गंभीर। हाय, मैं वरुण धवन बोल रहा हूँ। हाय, मैं हूँ आलिया भट्ट। जब भी एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दे तो हो जाए लेफ्ट, क्योंकि एम्बुलेंस फर्स्ट। अब बकवास बंद,
बदलाव शुरू। एम्बुलेंस फर्स्ट के साथ साथ फीवर वॉइस ऑफ चेंज ने जिम्मा लिया ऑर्गन ट्रांसप्लांट का और बनाया ग्रीन कॉरिडोर, जिसमें एयरपोर्ट से हॉस्पिटल का सफर जो घंटों का था उसे मिनटों का बना दिया। एम्बुलेंस फर्स्ट का डंका सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क तक बजा। रेडियो के ऑस्कर कहे जाने वाले न्यूयॉर्क फेस्टिवल ने एम्बुलेंस फर्स्ट इनिशिएटिव को 2 बार NYF अवार्ड से नवाजा। और फिर कैंसर सर्वाइवर्स की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ जुड़े युवराज सिंह। फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ कैंसर सर्वाइवर की जिंदगी के बदलाव के लिए मैं युवराज सिंह तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? फीवर वॉइस ऑफ चेंज ने वोटिंग परसेंटेज में किया बदलाव अपनी मुहिम ईच वन खींच वन के साथ। नमस्कार, मैं हूँ फीवर आरजे अमिताभ बच्चन। चुनाव का माहौल बना हुआ है और मैं तो कहूँगा कि ईच वन खींच वन। जब मैं भी वोटिंग करने जाऊंगा तो किसी को साथ खींच कर लेकर जाऊंगा। इंडियन आर्मी के साथ मिलकर फीवर वॉइस ऑफ चेंज ने एक ऐसा जश्न मनाया जिसका शोर बॉर्डर पार पहुंचा। मैं गौतम गंभीर। मैं हूँ कर्नल VN थापर, कैप्टन विजयन थापर का फादर। मैं हूँ मेजर गौरव आर्या। फीवर FM के साथ मिलकर कहता हूँ, इस कारगिल विजय दिवस मिलकर ऐसा जश्न मनाएंगे कि शोर बॉर्डर पार पहुंचे। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। 7 दिसंबर इंडियन आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे पर फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ पूरे हिंदुस्तान ने मिलकर दिखाया अपना देश प्रेम। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सारे अपने फैंस से और लिसनर्स से, आप फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे इवन ट्विटर हो, अगर आप अपना फ्रेम चेंज कर सकते हैं 7 दिसंबर को तो कहीं ना कहीं आप वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं आर्म फोर्सेस को। दिल्ली की बिगड़ती हवा और पोल्यूशन से एनवायरनमेंट को बचाने के लिए फीवर वॉइस ऑफ चेंज लेकर आया प्रोजेक्ट ग्रीन हार्ट्स, जहां हमने दिल्ली NCR में लगाए 1 लाख से भी ज्यादा पेड़। आप पहले 1 या 2 पेड़ों से शुरुआत करो और कोशिश करो कि उन पेड़ों को अपने बच्चों की तरह बड़ा करो। पुलवामा अटैक इस मुश्किल की घड़ी में पूरे देश को शहीदों के परिवार से जोड़ रही थी एक वेबसाइट भारत के वीर। तो फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ मिलकर सुपरस्टार अक्षय कुमार ने फीवर 104 FM पर DG CRPF से कहा, हेलो डी साहब शरद। हाँ नमस्कार। नमस्कार। अक्षय भाई मेरे साथ दूसरी लाइन पे। नमस्ते जी। मेरे लायक कोई भी सेवा हो, मैं बोला पूरा देश आपके साथ है इस वक्त। अभी आई हैव जस्ट सेंट 5 करोड़ रुपीस टू भारत के वीर फ्रॉम माय साइड। फीवर वॉइस ऑफ चेंज ने शुरू की मुहिम #सिंगल यूज प्लास्टिक से ब्रेकअप। मैं तो सभी दुकानदारों से आग्रह करूंगा, आप अपने दुकान पर हमेशा बोर्ड लगाते हैं, एक बोर्ड ये भी लगा दीजिए, कृपा करके हमसे प्लास्टिक की थैली की अपेक्षा न करें। और फिर पहली बार देश के किसी मीडिया हाउस की पीठ थपथपाने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फीवर 104 FM के लिए ट्वीट किया। फीवर वॉइस ऑफ चेंज के पिछले 5 सालों की ये तो बस एक छोटी सी झलक थी, लेकिन फीवर वॉइस ऑफ चेंज की टीम जॉन एब्राहम के साथ कहती है, ये बस शुरुआत है, बदलाव अब भी बाकी है।